CLAT 2026 is now around the corner. A lot of us have different sort of anxieties, different sort of insecurities of what is going to happen on that particular day. We all know that we have prepared decently now. जितना भी हम कर सकते थे, हो सकता है कई बार हमारे मॉक टेस्ट से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, but even then I think you have prepared decently now and अब हम कुछ limited चीजें उसमें add कर पाएंगे. But there are certain things that you really need to listen in order to do your exam very properly. इन चीजों को बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में नहीं अप्लाई कर पाते हैं या शायद उनको पता ही नहीं होता है, एंड एज अ रिजल्ट डिस्पाइट प्रिपेयरिंग रियली वेल, गेटिंग दैट आइडियल स्कोर इन मॉक्स आल्सो, और इवन नॉट गेटिंग दैट आइडियल स्कोर इन मॉक्स, you always get stuck in the paper and you end up making the mistakes जो उन 2 घंटों में नहीं हो सकती हैं. Because आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि आप क्लैट में कुछ मिस्टेक कर रहे हो while in the exam, you do not have a lot of time to rectify those mistakes, है ना. एक बार तो अगर आपने OMR में मार्क करते तो बात खत्म. You do not have that second chance. अगर आपने नहीं भी मार्क किया, very few people have the time to come back to the question, to contemplate again, to understand again, read the passage again. नहीं होता है हमारे पास टाइम, right? So how do I go about the paper when I get it in my hands? इन बातों को याद रखना. These words should echo in your brain when you actually have the paper for the first time in your hand. First, very important thing is keep in mind that it is the reading sections that are going to maximize your score. About 80 marks की reading sections आएंगे एग्जाम में. आपको कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ रीडिंग में, as close as possible to 80. That is going to be a game changer for you in the exam. Let's say I attempt 75 questions in the reading part, because reading part में क्या होता है, other than tone of the passage or other than vocabulary questions, all the questions are subjective from the passage. So if I've read the passage properly, if I've read it carefully, I will mostly be able to answer all the questions quite easily. And looking at the trends of previous year question paper, logical reasoning and English section is never difficult in your exam. So इसीलिए you have to do these 3 sections very properly. Out of 80, target a score of at least 70 if you want to go into top 5 NLUs via the general category, right? अब बचे remaining 40 marks. अगर मेरे 70 marks आ जाते हैं in the first 3 sections, or you could say the reading sections that I'm talking about, मेरे को GK और current affairs plus DI मिला के 40 मार्क्स में से स्कोर करने अराउंड 25. थोड़ा सा लग रहा है ना पॉसिबल कि 60% तो हम कर सकते हैं स्कोर आउट ऑफ 40, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. रीडिंग सेक्शंस आर योर गेम चेंजर. रिलाई ऑन देम प्रॉपर्ली. डोंट रिलाई ऑन सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स. वी हैव अ टेंडेंसी, राइट? करंट अफेयर्स हमने इतना प्रिपेयर किया है तो हमें आ ही जाएगा, आना ही चाहिए. हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, रिवाइज भी किया है, वी हैव डन ऑल द बैकलॉग्स एंड एवरीथिंग, तो हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं. Also, current affairs is one section. If you look at it in a positive way, it actually creates a difference. क्योंकि रीडिंग सेक्शन काफी लोग अच्छा करते हैं, करंट अफेयर्स बहुत कुछ डिसाइड करता है, बट यू कांट रिलाई ऑन द सेक्शन. This section has a way of its own wherein it is going to be very vague one year, it's going to be very difficult one year. तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां पर छोड़ने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां गलत भी होंगे, राइट? DI is still one section that you can rely on. Be good at DI. अभी आपके पास टाइम है. DI के सारे टॉपिक्स करने में भी ना 3-4 दिन में एंड में फटाफट भी कर सकते हो, बट उसको जरूर करके जाना. डोंट मिस आउट ऑन एटलीस्ट दीज 4 टॉपिक्स: परसेंटेजेस एंड एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सिर्फ ये 4 टॉपिक जरूर करके जाना. इसमें से ही दो पैसेजेस आने के चांसेस कई बार बन जाते हैं. एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो ऐसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करोगे, नॉट बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ टेंशन. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज टाइम मैनेजमेंट बिट. टाइम मैनेजमेंट में क्लैट 2025 जिन लोगों ने दिया है या जिन्होंने नहीं भी दिया है, मैं आपको एक बात बताता हूं. ऑल ऑफ अस गॉट स्टक इन दैट रॉन्ग एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन. आप सबको पता है कि हमको हर सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम मिलता है क्लैट में, है ना? आई थिंक हम अपने लिए डिवाइड तो करते हैं ना. क्लैट तो पूरा 2 घंटे का है, लेकिन हम डिवाइड करते हैं कि भाई आई विल डू दिस इन 25 मिनट्स, आई विल डू दिस इन 15 मिनट्स, दिस दैट इन 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, जो भी. Let's say I have identified 25 minutes for English, wherein I will do those 5 you could say passages there. अगर मेरे को 25 मिनट में 5 पैसेज करने हैं, इसका मतलब मैं एक पैसेज को 5 मिनट में कर रहा हूँ. If I'm doing one in 5 minutes, can there be a scenario in any case कि मैं उसे 5 की जगह 8 या 10 मिनट लगा दूं? पॉसिबल ही नहीं. अगर मैंने वहां पे 10 लगाया, मेरा पक्का एक पैसेज छूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास है ही 25 मिनट. कीप दिस इन माइंड. अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ओवर एम्फेसाइज कर रहे हो, बार बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और आपको लग रहा है आ क्यों नहीं रहा है, मैं तो सही कर रहा हूं एंड ऑल, लीव दैट देन एंड देयर. डोंट गेट टू इमोशनल इनसाइड द पेपर. आपके पास और आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप मार्क्स इकट्ठे कर सकते हो. एंड लेट्स होप दैट यू हैव टाइम एट द एंड सो दैट यू कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड डू इट. आप उसको वहां पर हल्का सा मार्क कर दो कि मुझे वापस आकर ये करना है. इट इज कंप्लीटली फाइन. But don't make a mistake of getting stuck into a question. That is exactly what a lot of people did in the CLAT exam in 2025 and they got stuck. बाद में टाइम ही नहीं मिला. DI के किसी के दोनों पैसेजेस छूट गए, किसी का एक पैसेज छूट गया, किसी के रॉ सेक्शन छूट गए. Why do we want to get into this sort of a situation?
इस चीज को पहले ही दिमाग में रखकर जाना so that you have it there while you are getting stuck on a particular question. Third very important thing, जब मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस यू कुड से रीडिंग सेक्शन में अच्छे से कर सकते हो, ये बात को ध्यान रखना कि अगर रीडिंग सेक्शन में आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगता है ना, तो आप उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर छोड़ दो. Let's talk about legal reasoning. Legal reasoning में क्या होता है? Sometimes the questions are quite easy. Contract, constitution से आ गया, I'm generally able to do it. कुछ legal current affair से आ गया, if I've studied that current affair, I'm able to do it. But अगर कुछ ऐसा random question आया from that PMLA, I'm not able to do PMLA very easily because मैंने वो law नहीं पढ़ा इतना आसानी से. Some random miscellaneous law का कोई principle आ गया, कोई judgment आ गया, it gets difficult for me, right? So if it's a long passage and if it's something तो आपको लगता है कि यार तो बहुत ही अजीब दे रखा है, leave it at that point in time. We will come back and do it. But let's first focus on doing those questions that we are going to be sure about. There are going to be at least 70, 75, even 80 questions at times जिसको आपको आते होंगे आपको. चाहे वो एक बेसिक एलिमिनेशन से निकाल लोगे, आपको एक्यूरेटली आते होंगे, बट 80 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते होंगे. वो 40 क्वेश्चन होते हैं जो आपको काफी दिक्कत देते हैं, बट 40 में से हमें तो लाने हैं 15-20. तो 80 क्वेश्चन तो ठीक से कर लें पहले. हम वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो हमें आ रहा होता है, और हम उस क्वेश्चन को इतना इंफोकस करते हैं जो हमें नहीं आ रहा होता है कि उसमें टाइम ही वेस्ट करते हैं, और उसको अल्टीमेटली कह सकते हो कि आप वी आर नॉट एबल टू डू द एंटायर पेपर प्रॉपर्ली, और हमें बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं होता पेपर के बाद में. 2 घंटे का समय ना आपको समझ नहीं आता, ऐसे निकल जाता है. जब आप एग्जाम के दौरान स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा. एग्जाम के दौरान हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों को सोच सकते हैं, बट जो स्ट्रेटेजाइजेशन होता है ना कि क्या क्या एग्जाम में हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये पहले से सोच कर जाना पड़ता है. मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि व्हाई द लास्ट मंथ मैटर्स. तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि भाई लास्ट के मंथ में हर रोज अपने आप को 20 मिनट दो, खुद से सोचो कि क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन आई डू रॉन्ग, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, हाउ डू आई वांट टू वर्क ऑन दिस एग्जाम फ्रॉम नाउ टिल द एग्जाम. डू दैट, इट इज सर्टेनली अ गेम चेंजर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं I have gotten this done with so many students and genuinely produced results when students have actually applied that properly while they're preparing for the paper. And the last part, the fourth very important point that I want to discuss for all of you, you have to keep this in mind that attempts are the game changer, not just the accuracy. अगर आपको लग रहा है कि I will do 95 to 100 questions and मेरे को accuracy के साथ में वो questions करने हैं, no, it is not going to work out unless and until you could say आप बहुत ही उनको अच्छे से करके आओ, जो बहुत ही रेयर सिनेरियो में होता है ना. आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो ना, उतने ज्यादा क्वेश्चंस करो. 120 मार्क का पेपर है, आप द क्लोजर यू कैन गेट टू 120, ट्राई दैट आउट. देखो जब पेपर 200 मार्क्स का होता था क्लैट, जब 150 मार्क्स का होता था ना, तब एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स की डिबेट चलती थी. अभी वो डिबेट को खत्म करना है, अटेम्प्ट को बढ़ाना ही है. उसमें हो सकता है आपकी एक्यूरेसी हल्की सी कम आ जाए, बट ओवरऑल फिर भी फायदा ही होगा. अभी बात मान के चलो, इफ समबडी इज अटेम्प्टेड 100 क्वेश्चंस एंड देयर इज अनदर बॉय हु इज अटेम्प्टेड 112 क्वेश्चंस, 12 नंबर में अगर उसके 4-5 एक्स्ट्रा गलत भी आपसे, डजंट मैटर एट ऑल, वो आपसे फिर भी ज्यादा स्कोर करेगा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसमें हमेशा कम ही है, इसमें पॉजिटिव ज्यादा है. तो कीप दिस इन माइंड, यू कैन जेन्युइनली डू दिस इफ यू फॉलो दीज 4 पॉइंट्स ऑन द एग्जाम डे. इसकी स्ट्रैटेजी लेकिन आज ही बनेगी. इसको लिख लो, इसको समझ लो, अपने दीवार पे स्टिक करना है, इसको वो कर लो, बट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए व्हेन यू एंटर द एग्जाम हॉल एंड व्हेन यू एक्चुअली गेट द पेपर इन योर हैंड. दिस इज योर एग्जाम. Take responsibility for it and you will genuinely clear it if you feel from within that I have it in it to crack me. I'm going to stay very calm. I'm going to make sure that I do this and make CLAT happen this year. All the best guys. I'll see you on the other side.